Hello guys, নমস্কার or নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম and নবুদ্ধায়. This is Shetu and this is আকাশ রায়। welcome to new reaction video. তো guys, তোমাদের গেস্ট আসছে আকাশ রায়. হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড. ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ এখানে আসার জন্য আর আমার সাথে রিয়াকশন দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, আমি কিন্তু সেলিব্রিটি। হ্যাঁ অবশ্যই সেলিব্রিটি তুমি। আমি কিন্তু সেলিব্রিটি, তুমি কিন্তু আজ থেকে সেলিব্রিটি হয়ে যাবা। মুখে মাস্ক পরবা, নাহলে সবাই বন্ধু তো আমি। আচ্ছা সবাই কিন্তু ছবি তুলতে পারে, সেজন্য মুখে মাস্ক পরবা। হ্যাঁ আমার মতো। অবশ্যই। জোকস বেস্ট জোকস ইন 2023। 2023। আচ্ছা গাইজ বাদ দাও। তো গাইজ আই হ্যাভ আ রিকোয়েস্ট টু গাইজ, ইফ ইউ নট প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। সে কিন্তু মানে হি ইজ নিউ অন ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম, সো নিড ইউর সাপোর্ট গাইজ। অ্যান্ড হিজ ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। অ্যান্ড হোয়াট ইজ মানে তোমার নাম কি, ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি? ইউটিউব চ্যানেলের নাম মনে নাই? মনে কর দর্শক ওয়েট করতেছে। ঠিক আছে, দে আর ওয়েটিং। ঠিক আছে, নাও কাটে দিস ভাই, মারিস কাটা যাবে না। চ্যানেলের নাম কি? রিঅ্যাকশন বাই আকাশ। সত্যি? আচ্ছা, মেলাক্ষণ পরে গাইস মনে পড়ছে। তো গাইস বাদ দাও। আচ্ছা, ওর ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, আর নাম হচ্ছে রিয়াকশন বাই আকাশ, রাইট? তো ওটা রিয়াকশন ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইজ আর বেশি কথা বলবো না, জাস্ট ভিডিওতে চলে যাব। ও আরেকটা কথা বলি গাইজ, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ subscribe my second blog YouTube channel, link in description, okay? And my second blog YouTube channel name is Bong Village, okay? So super excited, and basically today I'm going to react on a video and the title name is India Pakistan or 1971. So super excited, and original video link in description. Please go and visit and subscribe our YouTube channel. হাসতেছিস কেন? হাসিস কে? কিছু না। Okay guys, super excited, चलो let's go. नमस्कार दोस्तों। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ऑपरेशन चेंगिस खान लॉन्च करता है। इंडिया की कई एयरफील्ड्स पर बम गिराए जाते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर, टोटल में 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया जाता है। उस शाम को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं देश की जनता के लिए। ये कहती हैं कि इंडिया के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इंडियन एयरफोर्स रिटेलिएट करती है और कुछ इस तरीके से पाकिस्तान ऑलवेज हमला करे, আমাদের দেশে हमला করলো। 1971 वॉर বাট কোন জায়গায় পাত্তা পায় না। जिसके अंत में एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, यस, आवर कंट्री। शेख मुजिबुर। लेकिन क्या कारण था आखिर, क्यों हुई ये वॉर? क्यों बांग्लादेश आजादी चाहता था पाकिस्तान से, और इंडिया का क्या रोल आता है इस पूरी कहानी में? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ओके। India gave people of Bangladesh their independence. মুক্তির সংগ্রাম ভাই, এই স্লোগানটা শুনলে না বুঝবো মানে। Pakistan lost half of its country. Yes. A new nation was born, Bangladesh. पाकिस्तान ऑलवेज। कहानी की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश के पहले से, कॉलोनियल टाइम से पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यानी आज के दिन का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका। इस पूरे एरिया में हजारों छोटे बड़े ऑटोनोमस किंगडम्स हुआ करते थे। राजा महाराजाओं का रूल था, जिनकी अपनी लैंग्वेजेस होती थी, ट्रेडिशन होता था, अपना कल्चर होता था। जो बंगाल का एरिया होता था, स्पेसिफिकली अगर सिर्फ बंगाल वाले एरिया की बात करें, यानी आज के दिन का बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल और इसके आसपास का कुछ एरिया, इस एरिया को करीब 13th सेंचुरी से मोस्टली मुस्लिम राजाओं के द्वारा रूल किया गया था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, उन्होंने मुस्लिम रूल को शुरू किया था इस एरिया में अर्ली 13th सेंचुरी से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये जानने वाली है कि जो भी रूलर्स थे यहाँ पर, उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था अपने रिलीजन को प्रीच करने में। उनका फोकस इसमें बने रहता था कि कैसे वो लोकल कम्युनिटीज को सिस्टम का हिस्सा बना सके। तो इन मुस्लिम राजाओं के टाइम में भी जो बड़े हाई ऑफिस होल्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, वो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स और ट्रेडिशन से आते थे। बेसिकली कहा जाए, हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में जो को एग्जिस्टेंस थी और इंटरमिंगलिंग थी, वो इस एरिया में बहुत देखी गई। इसकी वजह से जो कट्टरवाद था, एक्सट्रीमिज्म था, वो काफी हद तक कंट्रोल में रहा। समय में आगे चले तो साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस एरिया को टेक ओवर कर लेती है, जिसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। जिसके बाद 1947 तक ब्रिटिश रूल रहता है और फिर हमें देखने को मिलता है पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान की। इंफॉर्मेशन
ओ मानू। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, carrying their few possessions, 1 million people become refugees overnight. साल 1940 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में लाहौर रेजोल्यूशन बनाया जाता है, जिसमें डिमांड उठाई जाती है कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। इनका डर ये था कि अगर एक ही देश बना रहेगा तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी बन जाएंगे और वो डर में जिएंगे। पार्टीशन करते वक्त रिलीजियस लाइंस पर बॉर्डर्स बनाने का मतलब ये था कि जो सोशल, कमर्शियल और कल्चरल संबंध थे लोगों के बीच में, उन्हें नजरअंदाज करना पड़ता। यानी बड़ी बड़ी स्टेट्स जहां पर कॉमन कल्चर्स थे, भाषाएं एक बोली जाती थी, उन्हें भी बांटा गया पार्टीशन की वजह से, बस इसलिए क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड करना है। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं पंजाब और बंगाल। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया, कुछ हिस्सा इंडिया में रहा, और सेम विद बंगाल, कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। लेकिन बांटने का मतलब ये नहीं था कि इनके कल्चर अलग अलग हो जाएंगे। जो दो हिस्सों को बांटा गया, वहां के लोग सेम भाषा में बात करते थे, सेम कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। बंगाल में जो मुस्लिम्स पाकिस्तान के फेवर में थे, उनकी उम्मीद ये थी कि एक नया मुस्लिम देश बनने से उन्हें एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, उनकी फाइनेंशियल और सोशल कंडीशन इंप्रूव होगी। इनमें से कई ऐसे लोग थे जो इंफीरियर फील करते थे हिंदू लैंडलॉर्ड्स के लिए, क्योंकि वो उनके लिए काम किया करते थे। वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ देख रहे थे अपने फंडामेंटल राइट्स पाने के लिए। ऑब्वियसली जब बंटवारा किया गया, पार्टीशन हुआ, तो बहुत से परिवार, बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए। एक भारी माइग्रेशन देखने को मिली, जिसमें कई मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हुए और कई हिंदूज पाकिस्तान से इंडिया आए। इसी बीच बहुत से दंगे हुए, मॉब वायलेंस हुआ, कुछ 2 से 20 लाख डेथ्स का एस्टिमेट किया जाता है। Communal hatred flares up in the Punjab. Pakistan and India each say they are determined to stop the wholesale rioting. But meanwhile, the exodus continue. इस माइग्रेशन में एक ग्रुप ऑफ लोग थे जो बिहार में रह रहे मुस्लिम्स थे। अब बिहार ऑब्वियसली क्योंकि बांग्लादेश के ज्यादा करीब है, तो बहुत से मुस्लिम्स जो बिहार में रह रहे थे वो ईस्ट पाकिस्तान में माइग्रेट किए। इन मुस्लिम बिहारीज को स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आप आगे कहानी में देखेंगे कि कैसे इन्हें माना जाता था कि ये बांग्लादेश के खिलाफ है, इन्हें एंटी बांग्लादेशी माना जाता था। अभी के लिए पार्टीशन पर वापस आए तो बंगाल का जो पार्टीशन हो रहा था वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू था। शुरुआत में पूरे बंगाल ने पार्टीशन के खिलाफ वोट किया था, अगर इस पार्टीशन का मतलब हो कि बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़े। लेकिन इस बंगाल में ही वेस्ट बंगाल का जो रीजन था, वहां रहने वाले लोग पार्टीशन चाहते थे और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। दूसरी तरफ जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन था, वो पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कोई पार्टीशन हो तो वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे। तो इवेंचुअली जब पार्टीशन हुआ, वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना। पाकिस्तान के देश को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिनके बीच सेपरेशन 1500 किलोमीटर का था और बीच में इंडियन टेरिटरी थी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान का जो नया देश बना, उसमें जो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप था वो एक्चुअली में बंगालीज का था। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इस नए पाकिस्तान के देश की बंगालीज थी, जो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे। बाकी वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबीज, पख्तून्स, सिंधीज और बलूच, बंगालीज की पॉपुलेशन ज्यादा थी আমাদের দেশ থেকে ওখানে, लेकिन जो पावरफुल पोजीशंस जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और पॉलिटिक्स की जो पोजीशंस हैं, वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में थी। स्पेसिफिकली कहा जाए तो मुहाजिर्स और पंजाबी जो लोग थे। अब इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए 1947 के बाद पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हुई उसे समझते हैं। पाकिस्तान की शुरुआत हुई एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक जैसे इंडिया की हुई थी। लेकिन फर्क ये था, पाकिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। पावर एक इंसान के हाथ में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सही तरीके से स्ट्रांगली एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। साल 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए थे अनडिवाइडेड इंडिया में। इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखकर बाद में जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ तो लेजिस्लेचर्स को भी इसी तरीके से डिवाइड किया गया। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने, जिनका देहांत आजादी के सिर्फ 1 साल बाद हो जाता है 1948। उनके गुजर जाने के बाद नजीमुद्दीन गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। करीब 3 साल बाद अक्टूबर 1951 में लियाकत का असैसिनेशन कर दिया जाता है और नजीमुद्दीन नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। वो गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाते हैं, जो कि एक पंजाबी थे। साल 1953 में पहला मिलिट्री कू देखने को मिलता है पाकिस्तान में, जब गुलाम मोहम्मद पावर टेक ओवर कर लेते हैं और नजीमुद्दीन को डिसमिस कर देते हैं। अगले साल 1954 में इलेक्शंस होती हैं पाकिस्तान में और इन इलेक्शंस में ज्यादातर सीटें जीती जाती हैं यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा, जो कि ऑपोजिशन पार्टीज की एक कोलेशन थी। इनमें से एक सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग, जो कि एक ईस्ट बंगाल की पार्टी थी। इन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर दिया जाता है गुलाम मोहम्मद के द्वारा। साल 1955 में गुलाम मोहम्मद ऑफिस छोड़ते हैं और मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बनते हैं।
इनके अंडर पहली बार होता है कि ईस्ट बंगाल की रीनेमिंग करी जाती है। ईस्ट बंगाल को अब से ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाने लगता है। अब 1947 से लेकर 1971 के बीच में दोस्तों पाकिस्तान में कई फेजेस देखने को मिलते हैं जहां पर मिलिट्री का रूल चल रहा था। इसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज डिजर्व करती थी पावर में होना, उनसे पावर छीनी जा रही थी। स्पेसिफिकली कहा जाए, ईस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का मौका नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा ज्यादातर पैसा जो देश खर्च करता था वो वेस्ट पाकिस्तान के पास जाता था। 75% नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान पर स्पेंड किया जाता था। इवन दो 62% जो रेवेन्यू इनकम आ रहा था सरकार के पास, वो ईस्ट पाकिस्तान से आने लग रहा था। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी वो वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल रही थी। 1969-70 में जो पर कैपिटा इनकम था वेस्ट पाकिस्तान का 61% ज्यादा था ईस्ट पाकिस्तान से। 25 गुना ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स थे वेस्ट पाकिस्तान में। और इस सब के अलावा सबसे बड़ा इशू यहाँ पर था लैंग्वेज को लेकर। जिन्ना और उनके कई एडवाइजर्स मानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का सही मायनों में यूनिफिकेशन तभी हो सकता है जब वो एक भाषा बोले, और ये भाषा उनकी राय में होनी चाहिए उर्दू। तो वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स के द्वारा यहाँ पर उर्दू इम्पोजिशन देखने को मिला कि भाई जबरदस्ती है, हर किसी को उर्दू में ही बात करनी पड़ेगी। ऑफिशियल कामों के लिए आर्मी में हम हर जगह उर्दू में ही बात करेंगे सिर्फ। लेकिन ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो ईस्ट बंगाली थे, बंगाली भाषा बोलते थे। इनफैक्ट 56% पाकिस्तानी बंगाली में बात करते थे। उर्दू को एक लैंग्वेज ऑफ द एलीट माना जाता था। भाषार জন্য हाई যুদ্ধ प्रोफाइल করা लोग हैं, হয়েছে, सिर्फ সেটা वही হচ্ছে उर्दू में বাংলাদেশ। बात करते हैं। आम जनता बंगाल में रह रही बंगाली में बात करती थी। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक स्पीच दी थी और बड़े क्लियरली कहा था पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी और कोई और भाषा नहीं होगी। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan সেই is ভাষণ না, going to be Urdu and no other language. মানে ये सब सुनकर बंगाल नो में अदर रहने वाले लैंग्वेज लोग बड़े ओनली उर्दू भाषाয় outraged কথা हुए। বলো। Eventually इस उर्दू इम्पोजिशन की वजह से आत्मीय। शुरुआत हुई बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की। 21 फरवरी 1952 एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था इस लैंग्वेज मूवमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोविंशियल असेंबली के सामने। पाकिस्तान की आर्मी ने इन पर ओपन फायर कर दिया, 5 लोग मारे गए। और आज के दिन तक 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रभाषा as the बांग्ला चाहिए, language আমাদের কথাই martyrs বলতেছে day बांग्लादेश। सन 1999 में बाद में जाकर यूनेस्को ने कहा था कि 21 फरवरी अब से इंटरनेशनल मदर टंग डे भी मनाया जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में 2 साल बाद जाकर 1954 में बंगाली को फाइनली कहा गया कि एक ऑफिशियल स्टेटस दे देते हैं। 1956 में बंगाली को एक स्टेट लैंग्वेज भी बना दिया गया। लेकिन लोगों के अंदर जो फीलिंग थी बंगाली कल्चर और लैंग्वेज को लेकर वो और मजबूत बन चुकी थी। ऐसे इंसिडेंट्स ने एक बड़ा इंपैक्ट डाला आने वाले सालों में। साल 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है और इस वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान एक कमजोर डिफेंस के साथ रह जाता है। जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्बैलेंस था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, वो इस वॉर के बाद और उभर के आने लगता है। इसी रीजन से एक 6 पॉइंट डिमांड उठाई जाती है ईस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। ये डिमांड उठाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के एक फाउंडिंग लीडर थे। इस डिमांड के 6 पॉइंट्स देश हिला देने वाले होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही इसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और जो ईस्ट पाकिस्तान का रीजन है उसे और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। जो रिसोर्सेज है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो ईस्ट पाकिस्तान की सरकार को दिए जाए। 2 सेपरेट करेंसीज पाकिस्तान में, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए, एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। 500 টাকা। ईस्ट पाकिस्तान के अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व्स हो, इनफैक्ट एक सेपरेट मिलिट्री फोर्स भी हो। मतलब ये मांगे कुछ ऐसी हैं कि मानो कि ईस्ट पाकिस्तान को एक अपना अलग ही देश सा बना दिया जाए। ये सुनकर ऑब्वियसली वेस्ट पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनफैक्ट वेस्ट पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इस तरीके की डिमांड्स उठाना एक सेपरेटिस्ट मांग है, देश के खिलाफ जाना हुआ है, देश को बांटने की बात करने जैसा हुआ। इसी के चलते 19 जून 1968 को उस वक्त पाकिस्तान में अयूब खान की सरकार थी, वो शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। साथ में 34 और बंगाली सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी रचने के लिए। इन पर सेडिशन का केस लगाया जाता है। इस केस को पॉपुलरली बुलाया जाता है अगरतला कंस्पिरेसी केस। जनरल अयूब खान का कहना था कि शेख मुजीब और उनके साथी इंडियन गवर्नमेंट के साथ अगरतला में कोलैबोरेट कर रहे हैं जिससे कि वो एक आजाद बांग्लादेश बना पाए। अगरतला त्रिपुरा में है अगर आप भूल गए हो तो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक शेख मुजीबुर रहमान बड़े पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे। बंगाली लोगों की आवाज थे वो। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों को जो भी अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी सहनी पड़ रही थी
वो आवामी लीग और शेख मुजीबुर में ही अपनी उम्मीद ढूंढते थे। तो उनके अरेस्ट होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, भारी प्रोटेस्ट देखने को मिले। इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच एक शेख मुजीबुर के साथ ही सर्जेंट जहारुल्लाह हाक, जब ये जेल में बंद थे, इन्हें एक प्रिजन गार्ड के द्वारा मार दिया जाता है। ये सुनकर लोगों में और गुस्सा पनपता है, मानो लोग रेवोल्यूशन करने को तैयार हों। जनरल आयूब खान इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर देते हैं और जो अगरतला केस उन पर लगाया गया था अगरतला उसे षड्यंत्र withdraw कर दिया मामला। जाता है। लेकिन इस पॉइंट तक डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट और लेबर स्ट्राइक्स इस हद तक बढ़ चुकी थी कि आयूब खान को खुद रिजाइन करना पड़ता है 1969 में। यहाँ पर याद रखिए कि जनरल आयूब खान ने अपने हाथों में सत्ता ली थी एक मिलिट्री कू के जरिए। बेसिकली पाकिस्तान में उन्होंने पिछले 10 सालों से मिलिट्री डिक्टेटरशिप सी बना रखी थी। खुद रिजाइन करने के बाद वो अपने सक्सेसर को अपॉइंट करते हैं जनरल याहिया खान, और जनरल याहिया खान प्रॉमिस करते हैं कि वो पाकिस्तान में पहली जनरल इलेक्शंस करवाएंगे, और वो इलेक्शंस करवाई जाती हैं साल 1970 में। ये 1970 की इलेक्शंस के रिजल्ट्स बहुत ही चौंका देने वाले होते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग इन इलेक्शंस को जीत जाती है। 313 में से 167 सीट्स इनके पास जाती हैं। लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि इनमें से एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में ये नहीं जीतते। पाकिस्तान का लेजिस्लेचर कुछ ऐसे था कि 313 में से 169 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में थी और बाकी वाली वेस्ट पाकिस्तान में थी। तो आवामी लीग ने 313 में से 167 जीती, यानी ईस्ट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर सीट जीत ली, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ने 88 सीट्स जीती, और इस पीपीपी पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। ये शॉकिंग रिजल्ट्स दिखाते हैं कि जो दो हिस्से थे पाकिस्तान के, उनके बीच में दरार कितनी गहरी हो चुकी थी। अब ईस्ट पाकिस्तान में लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो सीटें भी ज्यादा थी, इसीलिए आवामी लीग को यहाँ पर विजेता माना जाता है। लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में सरकार बनाएगी जिसने एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं जीती। जो वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो उनके इंटरेस्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं होता। इन इलेक्शन रिजल्ट्स को देखकर जो पीपीपी के लीडर थे उस वक्त, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल याहिया खान के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देना चाहिए। लिटरली उनकी मर्जी के इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आए तो इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को खारिज कर दो, और जनरल याहिया खान एग्जैक्टली यही करते हैं। 1 मार्च 1971 को कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट करी जाती है कि जो भी इलेक्शन रिजल्ट आए हैं वही खत्म समझो इन्हें। ये सुनकर ईस्ट पाकिस्तान में हल्ला मच जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि ये क्या मजाक चलने लग रहा है, ये कोई डेमोक्रेसी हुई? हमने वोट दिया, हमारी मर्जी की पार्टी जीती, और क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तुम इलेक्शंस को कैंसिल कर दोगे उठाकर। सड़कों पर फिर से भारी प्रोटेस्ट उतरते हैं और इस बारी आजादी के नारे लगाए जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारे लीडर्स को इलेक्ट करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बाहर निकलो साइड में, हमें आजादी दो, हम अपना अलग से देश बनाएं। ये फाउंडेशन है दोस्तों बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर की। इस पॉइंट तक आते आते ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस्लाम को एज ए यूनिफाइंग फैक्टर नहीं देखते थे, बल्कि वो अपनी बंगाली एथनिसिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो चाहते थे एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बने जिसमें बंगाली एथनिसिटी यहाँ पर मेन चीज़ हो। यहीं से ही ये कंट्री का नाम आया है बांग्लादेश, बंगाली लोगों का देश। 7 मार्च 1971 कैंसिलेशन के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी जनता के सपोर्ट में उतरती है और कहती है कि यहाँ पर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करेंगे। वेस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार को कुछ भी कह लेने दो, हम उनकी सुनने ही नहीं वाले। शेख मुजीब यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच देते हैं रेस कोर्स के ग्राउंड पे, बड़ी ही ऐतिहासिक स्पीच। बांग्लार मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे, बांग्लार मानुष तारा आज अधिकार चाहे। नारे लगाए जाते हैं, आवर स्ट्रगल इज फॉर आवर फ्रीडम, आवर स्ट्रगल इज फॉर आवर इंडिपेंडेंस। 17 মিনিটের ছিল ভাষণটা। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। अब इस पॉइंट पर दोस्तों जो ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोग थे और जो उर्दू स्पीकिंग बिहारी लोग थे जिनका मेंशन मैंने वीडियो के शुरू में किया था, इनके बीच में तनाव बढ़ने लगता है। क्योंकि जो बिहार से उर्दू स्पीकिंग लोग आए थे उन्हें प्रो पाकिस्तान देखा जा रहा था, प्रो वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वो उर्दू में बात करते थे और जनरली वो वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में रहते थे। तो कई अटैक्स देखने को मिले प्रोटेस्ट के बीच में बिहारी कम्युनिटीज के अगेंस्ट।
और मार्च 1971 में पाकिस्तान की आर्मी इसे एज एन एक्सक्यूज यूज करती है इंटरवीन करने के लिए। पाकिस्तानी आर्मी कुछ प्रो पाकिस्तान बंगालीज को अपने ऑपरेशंस के लिए रिक्रूट करती है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसा नहीं था कि हर कोई जो ईस्ट पाकिस्तान में था वो अपने लिए एक आजाद देश देखना चाहता था। स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी थी जमात इस्लामी, उसके पॉलिटिकल लीडर्स और सपोर्टर्स एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की सरकार को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया। 10 और 13 मार्च के बीच में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है और उन्हें अर्जेंटली कहा जाता है कि वो ढाका में फ्लाई करें। कुछ सरकारी पैसेंजर्स को ले जाकर फ्लाई किया जा रहा है वहां पर। कौन है ये लोग? ये है पाकिस्तानी सोल्जर्स जिन्होंने सिविलियन ड्रेसेस पहन रखी हैं एक ऑपरेशन चलाने के लिए। मीनवाइल ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्टर्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है। जो बंगाली नेशनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली है जिसे मुक्ति बाहिनी कहा जा रहा है, मतलब द फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मुक्ति बाहिनी गुरिल्ला ऑपरेशंस कंडक्ट करती है वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का भी कंट्रीब्यूशन आता है क्योंकि इंडियन आर्मी मुक्ति बाहिनी की फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है गुरिल्ला वॉरफेयर में। इसके रिस्पॉन्स में वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान सेंट्रल पीस कमेटी बनाता है, शांति बाहिनी। बड़ा ही आयरॉनिक नाम है क्योंकि शांति बाहिनी ढेर सारे वॉर क्राइम्स करती है। हजारों सिविलियंस को मारा जाता है, औरतों पर अत्याचार होते हैं और स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उन्हें टारगेट करके मारा जाता है। टीचर्स, स्कॉलर्स और सोशल एक्टिविस्ट, इन्हें बुद्धिजीवी बुलाया जाता था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से सत्यानाश हो चुका होता है ईस्ट पाकिस्तान में। बंगालीज ने सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी बंद कर दी हैं जो भी पाकिस्तान से आ रही हैं। 25 मार्च 1971 वेस्ट पाकिस्तान की सरकार एक भयानक जेनोसाइड प्लान करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी पॉपुलर लोग बांग्लादेश की आजादी की मांग कर रहे हैं उन्हें पकड़ पकड़ के मार डालो। 25 मार्च की रात को हजारों पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स ढाका में मार्च करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान ले जाया जाता है। लेकिन इस अरेस्ट से पहले शेख मुजीबुर ने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था अब से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब से हम बांग्लादेश हैं। इस डिक्लेरेशन को एक ट्रांसमीटर के द्वारा किया गया था। ट्रांसमिशन को होने में कुछ घंटे का समय लगा था, तो मिडनाइट क्रॉस हो चुकी थी। इसी रीजन से दोस्तों आज के दिन 26 मार्च को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 27 मार्च 1971 मेजर जियाउर रहमान इस डिक्लेरेशन को पब्लिक के सामने पढ़ते हैं और अनाउंस करते हैं कि बांग्लादेश अब एक आजाद देश है। इसी रात ढाका यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट डॉर्मेटरीज पर हमला किया जाता है और एक ही रात के अंदर 7000 स्टूडेंट्स मारे जाते हैं पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। इस ऑपरेशन सर्चलाइट में 30,000 से ज्यादा बंगालियों का मैसेकर किया जाता है एक हफ्ते के अंदर। आधे लोग जो ढाका शहर में रह रहे थे वो शहर छोड़कर भाग जाते हैं। सारे फॉरेन जर्नलिस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाता है और रेडियो ऑपरेशंस को भी शट डाउन कर दिया जाता है। एक मिलिट्री अपॉइंटेड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंथनी मास्कारेनहास यूनाइटेड किंगडम भाग जाते हैं और 13 जून 1971 को जो उन्होंने देखा था उसे एक आर्टिकल में पब्लिश करते हैं द संडे टाइम्स में। इस आर्टिकल के जरिए पहली बार बाकी दुनिया को पता चलता है कि यहाँ बांग्लादेश में एक्चुअली में होने क्या लग रहा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद इस आर्टिकल को पढ़ती हैं और इससे मोटिवेट होती हैं कुछ एक्शन लेने को। इस क्रैकडाउन के बाद अवामी लीग के कई पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया भाग गए थे सेफ्टी के लिए। 10 अप्रैल को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट फॉर्म होती है एग्जाइल में कोलकाता में। शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है इंडिया पर। 1971 की जो ऑटम थी उस एक सीजन में 10 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया भागते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर सोचती हैं मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वॉर में हिस्सा लेकर इन लोगों को बचाना ज्यादा इकोनॉमिकली फीजिबल होगा एज कंपेयर टू इन 10 मिलियन रेफ्यूजीज की हम सहायता करने की कोशिश करें। हमारे पास इतने पैसा नहीं होंगे। 28 अप्रैल 1971 इंदिरा गांधी जनरल सैम मानेकशॉ को कहती हैं कि वो जंग की तैयारियां करें, ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री करने के लिए रेडी हो। जनरल सैम मानेकशॉ इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे इनिशियली कि इतने कम टाइम में इंडिया प्रिपेयर्ड हो सकता है और इस जंग को जीत सकता है, तो वो शुरू में रिजेक्ट कर देते हैं और ऑफर करते हैं रिजाइन करने को। लेकिन इंदिरा गांधी अपना कॉन्फिडेंस उन पर बनाए रखती हैं और उन्हें पूरी आजादी देती हैं कि जब उन्हें ठीक लगे तभी ऑपरेशन किया जाए। उनके काम की शुरुआत होती है मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से।
जुलाई 1971 तक आते आते इंदिरा गांधी ने एक्चुअली में ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान बुलाना बंद कर दिया है। अब वो इसे बांग्लादेश करके पुकारती है। वैसे सैम मानेक शो के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बहुत ही डिटेल में जाती है। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज, लेकिन अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे आपको साल भर की कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज ओनली। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्टली। ये सिर्फ 3 दिसंबर 1971 को जाकर ही होता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन चेंगिस खान लॉन्च करता है और इंडिया के एयरफील्ड्स पर हमला बोल देता है। पाकिस्तान को डर था कि इंडिया किसी भी वक्त मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वॉर में इंटरवीन कर सकता है और बांग्लादेश को आजाद करने में मदद कर सकता है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम ही पहले उन पर हमला कर दें। लेकिन ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी और मिलिट्री पावर थी वो कहीं ज्यादा बेहतर होती है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। इंडिया का रिस्पांस था कि वेस्ट पाकिस्तान में एक डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्रैटेजी चले और ईस्ट पाकिस्तान में एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव थ्रस्ट हो, यानी सोल्जर्स को ग्राउंड पर भेजा जाए। इंडिया की वॉर में एंट्री करते ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर करने के लिए फोर्स किया जाए। यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल 4 दिसंबर को असेंबल करता है। बड़ी लंबी चर्चा चलती है। उस वक्त यूएसए पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा था और सोवियत यूनियन इंडिया के फेवर में ज्यादा था। तो यूएस, चाइना और यूके एक्चुअली में सपोर्ट करते हैं कि इंडिया इमीडिएटली सीज फायर कर दे और अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर ले, लेकिन सोवियत यूनियन इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है 2 बार। और बंगालीज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही थी उन्हें ध्यान में रखकर बाद में जाकर यूके और फ्रांस भी वोट करने से एब्सटेन कर देते हैं। 6 दिसंबर 1971 भूटान पहला देश बनता है बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने वाला। इसी दिन इंडिया भी बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है। 12 दिसंबर तक आते आते इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हार को अपने सामने देख रहा है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जल्दी से न्यूयॉर्क जाते हैं अमेरिका के साथ डिस्कस करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर एक सीज फायर का केस बनाया जा सके। 4 दिन लगते हैं इस प्रपोजल को फाइनलाइज करने में, लेकिन तब तक ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी होती है। ये वॉर खत्म हो जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रस्ट्रेशन में आकर यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच रोककर काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं। ये वीडियो उनका आप यहां पर देख सकते हैं। Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. 16 दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी ने ढाका शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। 30 मिनट दिए जाते हैं सरेंडर करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार इमीडिएटली कोलैप्स कर जाती है। इसी दिन 16 दिसंबर 1971 हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाता है। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर करते हैं इंडियन फोर्सेस और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस के सामने। ये दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। अगले साल 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट साइन करी जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन पाकिस्तान को ये करने के बदले क्या मिलता है? इंडिया प्रॉमिस करता है पाकिस्तान को कि जो 93,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उन्हें वापस पाकिस्तान रिलीज कर दिया जाएगा 5 महीने के अंदर अंदर। और जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन इंडियन ट्रूप्स ने वेस्ट पाकिस्तान में कब्जा ली थी उसे भी इंडिया वापस कर देगा वेस्ट पाकिस्तान को। कुछ इस तरीके से दोस्तों जन्म होता है एक नए देश का, बांग्लादेश। 1972 में पाकिस्तान के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने के बाद 1974 में यूनाइटेड नेशंस भी बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में याहिया खान की डिक्टेटरशिप कोलैप्स कर जाती है और भुट्टो को 20 दिसंबर 1971 को नया प्रेसिडेंट स्वॉन इन किया जाता है। शिमला एग्रीमेंट के अनुसार मुजीबुर रहमान को भी जेल से रिलीज किया जाता है। वो ढाका लौटते हैं एक हीरो की तरह।
1973 में जब इलेक्शंस होती हैं बांग्लादेश में, लैंडस्लाइड मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्शंस जीतते हैं। अवामी लीग उनकी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहानी में यहाँ इतनी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्योंकि बात क्या है दोस्तों, जिस प्रॉब्लम से पाकिस्तान सफर कर रहा था, कॉन्स्टेंटली मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, उसी प्रॉब्लम से कुछ हद तक बांग्लादेश भी अब सफर करने लगता है। मुजीबुर रहमान एक सेक्युलर आदमी थे जिन्होंने जमात इस्लामी पर बैन लगा दिया था। उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन कर दिया जो धर्म के आधार पर बनी थी पावर लेने के बाद। लेकिन 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया जाता है उनके पूरे परिवार के साथ। सिर्फ उनकी 2 बेटियां जिंदा बचती हैं जो उस वक्त जर्मनी में थी। ये कहानी को मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है यहाँ पर। 1975 में जनरल जियाउर रहमान पावर पर कब्जा जमाते हैं और पब्लिक नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यानी बांग्लादेश में भी एक मिलिट्री कू देखने को मिलता है। ये मिलिट्री को हीरोज की तरह पोर्ट्रे करते हैं। जमात इस्लामी पर जो बैन लगा था उसे हटा दिया जाता है और अगले कई सालों तक बांग्लादेश एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बना रहने की जगह एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप बना रहता है। साल 2009 में मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना पावर में आती है और आज के दिन तक भी शेख हसीना ही पावर में है, करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। अवामी लीग रूलिंग पार्टी है। इस पूरी कहानी में क्या लेसन आपको सीखने को मिलता है, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। आपकी राय में क्या लेसन सीखा आपने इस पूरी कहानी से? मेरी राय में एक बड़ा लेसन जो यहाँ पर सीखने को मिलता है इस बांग्लादेश की स्टोरी से, वो लैंग्वेज इम्पोजिशन का है। शायद अगर जिन्ना ने उर्दू भाषा को इस तरीके से इम्पोज करने की कोशिश ना करी होती और बंगाली लोगों को एक बराबर ट्रीट किया होता वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के, तो शायद कभी बांग्लादेश देश एग्जिस्ट ही ना करता। या फिर ये फिर भी होता, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये दोनों रीजन्स इतने अलग हैं एक दूसरे से, कल्चर इनके इतने अलग हैं कि यूनाइटेड रहना बहुत ही मुश्किल था। आज के दिन कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होता, लेकिन फ्यूचर में सीख जरूर ली जा सकती है। वीडियो पसंद आया, ऐसे ही और हिस्टोरिकल वीडियोस देख सकते हैं। इंदिरा गांधी की 1975 वाली इमरजेंसी वाला वीडियो जरूर रेकमेंड करूंगा। इसके बाद आप जाकर देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। তো গাইজ ভিডিওটা শেষ হয়ে গেল, কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। তো অনেক ইনফরমেশন ছিল বল, অবশ্যই লট অফ ইনফরমেশন ইন দিস ভিডিও সিরিয়াসলি। তো গাইজ অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ গো অ্যান্ড চেক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অফ ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইজ লাস্টে আরেকটা রিকোয়েস্ট, ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। ওকে, নো নো নো, অলসো সাবস্ক্রাইব অফ হিস ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। নামটা কি জানি? রিয়েকশন বাই আকাশ। গাইজ এবার মনে পড়ছে, রিয়াকশন বাই আকাশ। তো প্লিজ যাও, অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক অর লাভ মি, তো প্লিজ গো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অফ হিস ইউটিউব চ্যানেল, বিকজ হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। এখন ইউ আর মাই অলসো ফ্রেন্ড, ইউ আর মাই ফ্যামিলি মেম্বার, রাইট? সো প্লিজ ভিজিট অফ হিস ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইজ আর কথা হবে না, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিও। ততক্ষণ ভালো থাকবেন। নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নবদ্দাও, টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।